right? So first I'm starting the revision of power sharing political science chapter 1. The chapter is too small, and we would be having a very quick revision for both the chapters. When we term power sharing, हम लोग सब जानते हैं, we all know, शेयरिंग का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को, किसी भी एरिया को we are sharing between two or among different people. And when it comes to the political ground, तो पॉलिटिक्स में क्या होता है, आपका सारा का सारा जो खेल है वो है पावर प्ले. जो पूरा का पूरा खेल है वो है पावर प्ले. Everyone wants to be in the power. And but डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट है शेयर, यानी कि यू नीड टू शेयर द पावर्स. यू कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट पावर. एब्सोल्यूट का मतलब हो जाता बेटा हर तरीके से जो आपका डिसीजन मेकिंग है, वेदर इट इज द मेकिंग ऑफ द लॉ, implementing or any dispute, everything is kept in one hand or few hands. But the spirit of democracy says you need to share the powers. So to learn this concept we have two situations, two countries जहां पर because of, जैसे क्योंकि इंडिया का भी वही है कि we are having a diverse population. We are not having one single religion, we are not having one single language. और इसी वजह से क्या होता है कि conflict का होना बहुत ही that's a very common thing. When does the conflict arises? When people belong to or their aspirations are different. और इसीलिए we are studying two case studies. One is the country Belgium, जो इंडिया के हरियाणा जितना है, वेरी स्मॉल, बट वहां रहने वालों का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, यानी कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग, इट्स डिवाइडेड इनटू डच, फ्रेंच एंड जर्मन्स. एंड वहां पर जो डच हैं दे आर मोर इन पॉपुलेशन, मेजॉरिटी दैट इज 59%, वेयरएज जो फ्रेंच हैं वो आपके हैं 40 and Germans are 1. On the other hand, जो Dutch है, they are poor and less educated, while on the opposite side, French are wealthy and rich. And ये जो छोटा सा बनाया है ब्राजील्स, वहां पर पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच जो है वो ज्यादा है, यानी कि जो 40% फ्रेंच ओवरऑल बेल्जियम में रहते हैं उसका 80% जो है वो ब्राजील्स में ही रहता है. तो दिस हैज बीन अ रीजन कि वहां ऑफन कॉन्फ्लिक्ट रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम हैड बीन अमेंडेड मेनी टाइम्स so that these problems do not arise. But ultimately these conflicts were there, and there was one model. This is your board question of 5 marks, 3 marks. What is the Belgium model of governance? So they adopted a मतलब कि एक ऐसा उन्होंने पावर को शेयर किया, which is also called as a federal system, in which first of all they divided the country into two major areas on the basis of the population living over there, that is French and Dutch. Then on the other hand, the central government, union government, was responsible for the entire country, integrity of the country. उसमें जो ministers थे, they were equal, and to pass any special law the support of majority was important. The states, they were not subordinate to center, they had their own autonomous power, क्योंकि वो अपने areas को, अपने jurisdiction को rule करते हैं.
एंड ब्राजील अगेन, क्योंकि वहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि वो कैपिटल है, उसके लिए भी एक अलग गवर्नमेंट बनाया जहां इक्वल पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल द एथनिक कॉम्पोजिशन. देन as वहां पे Muslims are also there, Buddhists are there, Christians are there, and मतलब लैंग्वेज में भी अलग है, रिलीजन में भी अलग है, तो व्हाट टू डू. इसीलिए लैंग्वेज को, मेनली लैंग्वेज को रखते हुए, दे इवन हैव डन अ थर्ड government, that is a community government, and that community government is elected by one language community. This reduced the conflict in Belgium, and itna successful raha that when European Union was formed in Europe, Brussels was said to be its headquarters. And ये आपका जो हम बेल्जियम मॉडल पढ़ रहे हैं, this is somewhere or else it's also a system of federalism where the powers, the revenues are shared. Now, ये तो हमारा था positive side where power has been shared. And now we are studying about the country which has not shared their powers appropriately. Sri Lanka, it's also a democratic country. It got its independence in 48. The Special Act 1956, they had enacted, they had adopted Sinhala as their official language. The reason, श्रीलंका जिसको हम पहले सिलोन के नाम से जानते हैं, वहां मेजर जो पहले लोग थे वो सिन्हालाई थे, and it was the people from India, they were deported to Ceylon, to Fiji Islands, जो हमने दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ा था. तो जो ये लोग वहां पर चले गए and they stayed over there, and then those who married, जो कुछ ऐसे तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो कुछ थे जो इंडिया से स्पेसिफिकली those who were deported, ये वहां चले गए. Now सिन्हाला जो है बेसिकली वहां पर the number of people, they are more, and इस वजह से क्या है कि they have taken the policy of majoritarianism. They have taken the policy of majoritarianism, and they have given the preferences to those people who are ethnically belonging to that country. They have fostered Buddhism and preferential policies in the universities, in the offices, in the government offices for the Sinhala. इसका result क्या रहा? The Sri Lankan Tamils, they were alienated क्योंकि वो भी Sri Lankans हैं, and they are not given the equality. They launched many parties, struggles. They even demanded to a special state policy कि हमें अलग सा एक दे दो, but nothing was done. Ultimately, this has led to conflicts, which also we call as civil war. तो जो दो हमने स्टोरीज पढ़ी हैं या फिर केस स्टडी पढ़ा है, one which has accommodated and the second one which has adopted the majoritarianism. आपके पेपर में एक बार आया था difference between the measures taken by Belgium and the measures taken by Sri Lanka. तो जो हमारा बेल्जियम है उसको हम अडॉप्शन अकोमोडेशन बोलते हैं और इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं. तो हमने देखा कि पावर को शेयर करने से द कॉन्फ्लिक्ट्स हैव बीन reduced. The country was not further divided like in Yugoslavia, in Ireland. ये जो प्रॉब्लम थी दैट हैड क्रॉप्ड अप टू सच एन एक्सटेंट कि कंट्री को ही डिवाइड करना पड़ गया. आयरलैंड नाउ इज अ पार्ट ऑफ यूके, लेकिन वहां पर जो झगड़ा है प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स का, दैट वाज आल्सो टू वायलेंट. Similarly, Yugoslavia had to be divided into 6 different countries, and if the ethnic conflicts are not dealt, then that may lead to the division of the country. हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से
तो जो आपके नए नए जो स्टेट्स आए लाइक तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, ये भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही डिवाइड हुए. Because if the government is not able to accommodate them जैसा वो चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स अराइज होती है. सो नाउ देर आर टू रीजन्स. आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में आया हुआ है एंड इट हैज ऑल्सो कम इन द ऑब्जेक्टिव टाइप्स. ऑब्जेक्टिव में कैसा आता है, आपको रेड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये कौन सा है, प्रूडेंशियल. दूसरा दे दिया जाता है वो कौन सा है, मॉरल. तो नाउ प्रूडेंशियल का मतलब होता है बच्चा राइट और रॉन्ग, रेशनल और इरेशनल. So in a democracy, if you want to reduce the conflicts, you want to bring stability, जो हमने बेल्जियम में भी देखा और श्रीलंका में भी देखा, power should be shared. And democracy का modern, democracy का एक base है participation of citizens. And if the citizens are not given the preferences, if they are not taken, they are not given the way of participation, तो उसको हम डेमोक्रेसी तो कह ही नहीं सकते हैं. श्रीलंका इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, येट जो तमिलियंस हैं दे आर एलियनेटेड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट reduce the conflicts and also allow the citizens to participate. हिंदी आपके पेपर में डायरेक्ट भी आता है. What are the forms of power sharing in modern democracies? Or it may come in the मतलब कि indirect way also. Now power has to be shared. And जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री जो है वो फेडरल हो. There can be a unitary government also, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं. So there can be different ways of sharing the powers in the democracy. It depends on the country's size, the country's ethnic composition. For example, the very first is among different organs. और ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आपका जो है डिफरेंट ऑर्गन्स वाला चल रहा है. That there should be 3 different organizations जो कि अलग अलग पावर्स को रखें. Their powers should not mingle with each other. The legislature should be responsible for battling the law and forming them. हमारे यहाँ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं. द एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो हमारे एमपीज हैं, हमारे जो पॉलिटिकल एज वेल एज हमारे जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे आर द वन जो इन लॉस जो भी हमारा बनाया है गवर्नेंस के लिए रूल्स, उसको इम्प्लीमेंट करने की मतलब कि दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल. एंड ऑफ कोर्स when laws are made, ऐसा भी हो सकता है कि the laws are not according to the constitution, या it is hurting the sentiment of a particular community, so there should be some unbiased judiciary system. मैंने अब जो वर्ड बोला unbiased, वो इसीलिए कि अगर गवर्नमेंट ही जुडिशरी का काम करेगी ना तो वो बायस हो जाएगी. और इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज देयर. तो ये तीनों जो है इनके पास अपने पावर्स हैं, बट एट द सेम टाइम दे कैन नॉट मिस यूज देयर पावर्स, so they can balance by checking each other. That is why this is also called as checks and balance. Horizontal means तीनों एक जैसे, horizontal. The next is among different levels. यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है which is more powerful, it is sharing its revenues, its powers with state government. वो states को
कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनियन को कुछ पावर देती है फॉर रूलिंग द कंट्री, तो स्टेट्स को कुछ पावर देती है फॉर रूलिंग देयर ओन एरिया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेडरल सिस्टम. पावर्स कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स. जैसे बेल्जियम के अंदर आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट है. सो दे आर सोशली, वो लोग जो है अलग अलग है बिकॉज दे आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. हमारे यहाँ पर क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, हमारे यहाँ सोशल ग्रुप्स अलग है. वी आर हैविंग सेपरेट सिस्टम फॉर देम. जैसे बामसेफ, बामसेफ जो है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज लुकिंग आफ्टर द मेन नीड्स ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड minorities इनके लिए. तो they also share their grievances. They are also given some powers. And of course, when it comes to the political party, तो political party का कभी directly कोई नहीं होता कि ठीक है भाई हम we are in US, sorry in Switzerland वगैरह में क्या होता है, मान लो 500, मतलब वहां पर 200 constituencies हैं. This is an example. If there are 200 constituencies, what they do is, जितने को जितना सीट मिला है, मान लो मेजॉरिटी ए पार्टी को मिली है और उसको 150 सीट्स मिल गए, ठीक है. सो दे विल बी द रूलर, दे विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. बट जो बाकी 50 सीट्स हैं उन पे जिस जिस पार्टी को जितने सीट्स मिले हैं, दे ऑल्सो हैव द शेयर ऑफ पावर इन द गवर्नमेंट. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पर है दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. उनको हम लोग ऑपोजिशन कहते हैं बिकॉज दे क्रिटिसाइज, दे एनालाइज द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट. और अगर उनको लगता है कि द लॉ इज नॉट सपोर्टिंग, इट इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, तो दे इवन ट्राई टू स्टॉल दोज लॉस. उन लॉस को रोकने की कोशिश करते हैं. दे गैदर द सपोर्ट ऑफ द मास सो दैट उनको जो है वो इस चीज को आवाज उठा सके. सेकेंडली और ये जो सिस्टम है, यानी कि उनको ये जो आजादी दी है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शेयरिंग द पावर्स. एंड सेकेंडली दे ऑल्सो शेयर द पावर्स बाय यूजिंग कोएलिशन, अलायंसेस. गवर्नमेंट अगर एक सिंगल नहीं फॉर्म होती है विथ वन सिंगल पार्टी, देन 2 और मोर डिफरेंट पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजीज अलग है, वो भी मिलकर पावर को शेयर कर कर जो है दे रूल. सो इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज वी कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर शेयरिंग. सो दिस इज द एसेंस ऑफ व्हाट वी कॉल एज पावर. क्योंकि पावर को जब तक हम शेयर नहीं करेंगे बच्चा, तब तक हम कभी भी किसी भी जगह पे जहां पर भी हम बोलते हैं दैट वी आर हैविंग इक्वालिटी, जहां पर भी हम ये वर्ड बोलते हैं ना, जहां हम ये बोल रहे हैं कि वी आर हैविंग इक्वालिटी, आई एम गिविंग इक्वल पावर्स, तो इक्वल पावर्स का मतलब होता है व्हेन द पर्सन, एवरीवन इज गिवन द राइट टू इवन पार्टिसिपेट. So equality will not come if I say कि yes everyone is equal, लेकिन only certain people are given all the preferences, तो हम उसको equality नहीं बोल सकते. And in the democracy it is very very important कि हम अपने powers को जो है share करें. So that is the chapter what we call as power sharing. Now the second chapter, federalism. इन फेडरलिज्म अभी हम लोगों ने पढ़ा था पावर शेयरिंग ऑफ पावर्स. तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सेम चैप्टर. व्हेन वी हैड सेड द पावर इज शेयर्ड इन द हॉरिजॉन्टल वे, यानी तीनों को, एग्जीक्यूटिव, देन judiciary and legislative have equal powers for their own area, and each of them are
बैलेंसिंग ईच अदर बाय चेकिंग ईच अदर, यानी कि किसी का पावर किसी से कम या ज्यादा नहीं है। वेयरएस ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, दैट इज द बेस फॉर ऑल द डेमोक्रेसी। आप किसी भी डेमोक्रेसी में देखोगे तो दे विल बी हैविंग द लेजिस्लेचर्स, दे विल बी हैविंग द एग्जीक्यूटिव्स एंड दे विल बी हैविंग द जुडिशरी। बट फेडरल सिस्टम को जो है, इट इज नॉट मतलब कि नेसेसरी दैट एनी कंट्री इज अडॉप्टिंग द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन द सेम मैनर जैसा हमारे यहाँ पर है। तो नाउ व्हाट इज फेडरल सिस्टम? तो सिस्टम वेयर द पावर इज डिवाइडेड, कुछ पावर्स तो हमने दे दिए हैं लॉ बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट देन डेफिनेटली जुडिशरी इज देयर। बट वेयर रूल कम्स, द सब्जेक्ट्स कम, कि किस पर कौन सा पावर, कौन सा मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कौन से लिस्ट ऐसे हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जिस पर आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, वो जो पावर है दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड between central and the various constituent. Now in the question you may be asked, बहुत कम आता है, 1 मार्कर में आता है कभी कभी, what is the difference between federalism and unitary system? Now यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चा? 1 मतलब एक यूनिट में आपने देखा होगा आपके इंग्लिश में लिखा हुआ 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स का मतलब है उसमें एक चैप्टर, एक पोएम ऐसे करके होता है। दैट मीन्स इट इज कंप्राइजिंग ऑफ सम एलिमेंट्स टुगेदर। इन यूनिटरी मतलब सिंगल, एक ही लेवल होता है। हाँ, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, सब यूनिट्स, लेकिन वो जो सब यूनिट्स होते हैं दे डोंट हैव एनी पावर ऑफ देयर ओन। उसमें जो रूल करने वाला होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सबऑर्डिनेट होता है। दे आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे कैन नॉट मेक एनी लॉ देमसेल्व्स। whereas in a federal system the power is divided among 2 or 3 levels। जैसे बेल्जियम में 3 लेवल्स हैं, द फर्स्ट इज द यूनियन, सेकंड इज द स्टेट एंड द थर्ड इज द कम्युनिटी। तो इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 और 3 डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज रिक्वायरमेंट, एंड ईच ऑफ द यूनिट्स, that is center, state and the third unit have their own jurisdiction. Now why we are using this jurisdiction? Because jurisdiction is a legal word, यानी कि legally they are having that area, उस area में legally if anyone else is making then they can take the matter to the court. So legally they have the authority to make law. Now what are the features of federalism? आपके पेपर के अंदर ये आपका आता है। फर्स्ट, there are 2 or more levels. The first level is आपका the union government. The second is state, or you can call it in different name. हमारे यहाँ हम उसको states बोलते हैं। Now the third level is not mandatory. हमारे यहाँ पर भी when the constitution was made in the initial we were having only 2 levels. ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है and many students write it 3 levels. 3 level हमारा third level 1992 में बना था, मतलब उसको insert किया गया था through article 73 and 74. तो mainly we have 2 or more levels. Then अब हम स्टेट में हैं, यू आर लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन यूपी। यूनियन गवर्नमेंट हम दोनों के लिए एक ही है, यानी कि सेम सिटीजन्स है लेकिन डिफरेंट गवर्नमेंट्स है। अब मेरा जो चीफ मिनिस्टर है वो आदित्यनाथ है, वहां का अरविंद केजरीवाल है, बट हम दोनों का वी आर द सेम सिटीजन्स, बट हमें 2 रूलर्स जो है वो एक साथ रूल करवा रहे हैं। And constitutionally the area is divided
एंड द सोर्सेस, कौन सा रेवेन्यू किसको जाएगा, कौन सा टैक्स किसको जाएगा, सेल्स का, सॉरी स्टेट का कौन सा टैक्स है, सेंटर को कौन सा टैक्स है, इट हैज बीन क्लियरली मेंशन. And if there is any dispute in the distribution of the powers, the courts are there to interpret, and thus it serves the dual objectives. एक जो हमारा श्रीलंका में हुआ था, द रीजनल डाइवर्सिटी, उसको अकोमोडेट करता है. अगर श्रीलंका भी इसी सिस्टम को लेता है तो then what will happen is they will not have the problems. जो स्टेट जो एरिया आपका सिन्हाला तमिल के लिए है वो that would go to them, and the one which is for the Sinhalas that would go श्रीलंकन तमिल से उनके लिए जाएगा और सिन्हाला के लिए अलग जाएगा. So जो regional diversity है that can be accommodated, and union government is responsible for the entire union, for the entire country. So it safeguards and promotes the unity. आपका डुअल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन अलग से भी आया हुआ है, एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ये फीचर्स का भी पार्ट है, ये अलग से भी आया है, इसीलिए आई हैव मेंशन्ड इट सेपरेटली. नाउ वी कैन प्रैक्टिस दिस फेडरेशन, मतलब है वही फेडरल सिस्टम है, dividing the country into different constituents and giving the powers to the states. हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं. The one is coming together and the second one is holding together. Coming together means all the states have equal power as center. हमारे यहाँ पर क्या है, द सेंटर हैज मोर पावर एंड द स्टेट्स हैव लेस पावर्स, बट इसमें सबको इक्वल पावर्स होते हैं, येट दे फॉर्म इनटू वन सिंगल कंट्री टू प्रोटेक्ट देयर सॉवरेनिटी, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए. लाइक यूएस इज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 50 कंट्रीज, 50 स्टेट्स, और ये 50 स्टेट्स के अपने अलग गवर्नमेंट भी है, अपने अलग ज्यूरिसडिक्शन भी है. It is their own wish whether they want to go with this or they want to go with this. वहाँ dual citizenship आपके चलता रहता है. हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है dual citizenship. So US, Switzerland, Australia, they are all the examples of coming together. And India, Belgium, Spain comes to the holding together. ये जो types of federation है, this can also be asked as what are the routes through which federation is practiced. टाइप की जगह रूट भी पूछा जा सकता है आपसे. In the holding together you can see I made a very shabby picture. Each one is holding each other. तो यहाँ पर the country has been deliberately divided into different states so that the regional diversity can be easily accommodated. So that is आपका holding together. Now, next question direct आता है, what makes India federal लिखा हुआ है तो ये जितने पॉइंट्स लिखे ये सब कुछ आ जाएगा, राइट. एंड इफ इट कम्स व्हाट इज द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो देन ओनली द सेकेंड पॉइंट विल कम. ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, बिकॉज बोथ ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेडली कमिंग इन द पेपर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ पेपर्स, नॉट ओनली योर स्कूल, बोर्ड्स, एवरीवेयर. नाउ अब हमने पढ़ा कि ये हमारे फीचर्स हैं, 2 or more levels, different tiers, same citizens, jurisdiction constitutionally granted. तो हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को फेडरल बोलते हैं? तो we have 3 tiers of government. Originally we had 2 tiers, but later on the third was added.
union, states and local. And the power has been distributed in threefold. Threefold होता है 1, 2, 3. The union, the one which is important for the integrity of the country, which is important for the safeguards of the country, the one which is important for the uniformity of the country. मतलब जहां हमें यूनिफॉर्म लॉस चाहिए, जहां हम सेफगार्ड चाहते हैं, जहां हम इंटीग्रेटेड रहना चाहते हैं, वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में आता है. जैसे डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग. हम चाहते हैं कि इनमें हमारा जो है झगड़ा ना हो. देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म पॉलिसी. स्टेट, all those areas which are important in that region, those powers have been given to the states. Like हर स्टेट का अपना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, अपने पुलिस के रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं, एजुकेशन है, बट we don't call it as a state list. They have different areas, whereas कुछ ऐसे areas हैं जो common भी है और आपका uncommon भी है. Marriage, we have the Hindu marriage law also, and of course regional diversity है. हर एक मतलब कि अपने culture होते हैं, इसीलिए we have the marriage, adoption, इनके law हमारे अलग अलग भी हैं. And those are concurrent. But अगर किसी भी हालत में कोई dispute होता है, तो then the law which is made by union is given more power. और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता, how can we say that union has more power? Then we also have one fourth list, residuary subject, which have not been included, which are included time to time. For example, cyber law, and only the union is having the power to make the law and implement it. Then तो ये तो हमारे वो 2-3 फीचर्स हो गए जो फेडरल में थे. Then in our country some powers have been given to the states due to the historic problems, ड्यू टू द हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर. जैसे कि जम्मू कश्मीर का हमारे कंट्री के साथ एक होना वॉज अ हिस्टोरिकल, यू कैन से, डिसीजन. जम्मू कश्मीर वॉज अ सेपरेट किंगडम रूल्ड बाय हरि सिंह. तो उस वक्त में व्हेन द प्रॉब्लम अरोज इन 1948, because Pakistan had attacked that particular portion and उनके हाथ में चला गया था एक particular area जिसको आज भी हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, POK. तो वो जो एरिया था जब वो चला गया था तो there were deliberations and Indian government under सरदार पटेल, हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उस वक्त में जो थे, उनके कहने पर हरि सिंह जी जो है, he had annexed जम्मू कश्मीर to India and a special power was given जिसके according the Indian born people did not have the power or the rights to buy property over there. But later on, August 5th, over a period of 70 years, things changed. And on 5th August 2019, it was removed. And now Jammu Kashmir is divided into two union territory. Union territory of Jammu Kashmir and Union territory of Ladakh. ये लास्ट ईयर आया था पेपर में 2020 में, ये वाला पर्टिकुलरली. नाउ यूनियन हैज मोर पावर्स. मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ यूनियन हैज मोर पावर्स. दिस इज वन मोर एग्जाम्पल. देयर आर सर्टेन एरियाज which were not under India when India got the independence.
Then there are some areas which are too small to be constituted as states. And because of the cultural diversity, उनको हम किसी स्टेट के साथ नहीं भी लेकर आ सकते हैं. तो गवर्नमेंट, sorry, the constitution has given central government the special powers to rule them. इसीलिए उनको हम यूनियन की टेरिटरी यानी कि यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. And currently we are having 8 UTs. They are administered by president, and he is the one who appoints the administrator to rule over there. And if any dispute is there regarding the distribution of the powers, then the courts are there to interfere. The next question comes is, how do we practice it practically? कैसे possible हुआ? Practically कैसे हुआ? तो practically it has been possible because our leaders, our constitution makers were well aware of all these problems. Yet जब इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, तो we had the problem of one thing, that is हमारे उस वक्त में जो states थे, they were not exactly states. They were called only as what we call provinces. तो उनको statehood लाना एक बहुत बड़ा question था. To bring them into what we call as statehood was a question. And that was a challenge before our rulers. तो पहले क्या प्रॉब्लम थी? जो सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी 1953 में. तमिलनाडु जो आज का है, जिसको हम मेड्रास प्रोविंस कहते थे, that constituted of parts of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, major Andhra Pradesh, major आपका Tamil Nadu, Andhra Pradesh था. So there were always ethnic and cultural conflicts, language conflicts. तो जो आंध्रा के लोग थे, they wanted कि आंध्रा should be given a separate statehood. So there was a mass protest in 1952. आंध्रा, विशाल आंध्रा मूवमेंट. एंड इस मूवमेंट के जो मेन मतलब की थे द पर्सन, पोटली सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू नहीं, पोटली से. ही डाइड ड्यू टू हंगर स्ट्राइक, और वो वायलेंट हो गया. तो आंध्रा जो है उसको अलग कर दिया गया कि भाई फॉर ऑल द तेलुगु स्पीकर्स. एंड उस वक्त में क्वेश्चन आया कि ऐसे तो हर एक थोड़े टाइम बाद तो हर एक लड़ेगा, क्योंकि सारे प्रोविंसेस में यही प्रॉब्लम थी. फॉर एग्जांपल बॉम्बे प्रोविंस जो था, दैट कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट डे गुजरात, विदर्भा एंड बॉम्बे एंड कर्नाटका. अगर आप अभी भी बॉम्बे जाओगे, कर्नाटका जाओगे ना, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा. तो तब प्रॉब्लम वहां पर भी आएगी, और ऑलरेडी आ भी रही थी. Therefore, in 1953, the State Reorganization Committee was set up. And this setup उसने 3 साल तक पढ़ा, and ultimately in 1956 it was implemented, the state reorganization, कि the country will be divided into 14 states and 6 union territories. और इस तरीके से वो जो प्रॉब्लम आने वाली थी उसको कई मतलब कि इट वाज, एंड लेटर ऑन धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, द स्टेट्स वर कार्व्ड. लाइक असम पहले पूरा था, लेकिन असम से आपका मेघालय कार्व होकर आया, नागालैंड, मतलब इस तरीके से वो कार्व हुआ था आपका नॉर्थ ईस्ट में. देन आपका सिक्किम इज द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, एंड तेलंगाना वाज द 29th स्टेट. बट अभी आर्टिकल 370 को हटाने की वजह से जब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी में आ गया, तो नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स. ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चे. तो दिस इज हाउ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर फॉर्म्ड एंड ट्राइड टू अकोमोडेट द रीजनल. तो ऐसा नहीं है कि सभी लैंग्वेज की वजह से हुए थे, सम वर बिकॉज ऑफ द कल्चरल ऑल्सो, जैसे झारखंड.
आपका बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनका यही था। रिसेंटली जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लैंग्वेज सेम है वहां पे। द सेकेंड वन इज लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि भाई श्रीलंका के अंदर तो उन्होंने बोला सिंहाला शुड बी द लैंग्वेज। किसी को भी अगर मतलब कि उसमें गवर्नमेंट में आना है तो दे मस्ट नो दिस। हम क्या करें, हमारे यहाँ पर तो किसी की भाषा तमिल है, किसी की मलयालम है, किसी की कन्नड़ है, किसी की असमी है, हम क्या करें, व्हाट टू डू। एंड नॉट एवरीवन, वहां पर क्या है कि एटलीस्ट कंट्री छोटी है तो ऑल द पीपल नो द लैंग्वेज। हमारे यहाँ पर हम दूसरे लैंग्वेज को कैसे लर्न कर सकते हैं, तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो पहले हिंदी को नेशनल लैंग्वेज सोचा गया था, बट फिर प्रॉब्लम क्या है, हिंदी इज द लैंग्वेज फॉर ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन, द रेस्ट पीपल आर स्पीकिंग डिफरेंट, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Therefore, Hindi was adopted as the official language, not the national language. कि ऑफिशियली अभी भी आप में से हर बच्चे को, अगर आपके पास हिंदी नहीं है तो, मतलब मैं आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्लू, अगर आपने हिंदी नहीं ली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो संस्कृत या फ्रेंच लेते हैं। लास्ट ईयर आई हैड स्टूडेंट्स हु आर हैविंग फ्रेंच, माय ओन डॉटर वाज हैविंग संस्कृत, बट अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई लॉ, बाय लॉस, आपको हिंदी पास करना पड़ता है, चाहे आप ए कोर्स मत लो, बी कोर्स ले लो, तो यू हैव टू पास इट, दैट इज बिकॉज ऑफिशियली यू आर परमिटेड। देन areas like Tamil Nadu had the problem, Hindi was not the language for them, and there was a mass violence there 56-57 में, वहाँ बहुत लंबा वो चला था, जिसकी वजह से वहाँ का जो सबसे बड़ा पार्टी है AIADMK वो फॉर्म हुआ था। एंड अल्टीमेटली बिकॉज ब्रिटिश के होने की वजह से इंग्लिश हैड बिकम द कॉमन लैंग्वेज इन अवर कंट्री, as the British were ruling in all the provinces, and that is why English and Hindi have been adopted as the official languages. And besides Hindi, ये क्वेश्चन में दो बार आता है ये क्वेश्चन, एक बार आता हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज, तो 22 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता बिसाइड्स हिंदी कितना है तो 21 है। हिंदी को इंक्लूड करके 22 है, लेकिन बिसाइड्स हिंदी वी हैव 21 लैंग्वेजेस विच आर recognized by the constitution. If you are living in that area, you want to study that as your second language, you can study. The third problem which came in our country was the rule between the center and state, क्योंकि सेंटर को पावर ज्यादा है तो they try to overpower the state, they try to control those areas. वो चाहते हैं कि सेंटर में जो रूलर है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वही आ जाए। इट ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, कई बार सेंटर मिसयूज करके स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहां पर पावर को ओवर पावर करने की कोशिश करते थे, बट ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी 1990s में खत्म हुई जब इंडिया में देखा गया द एरा ऑफ कोएलिशन, बिकॉज no political party was getting a clear majority, and political parties के पास और कई चारा नहीं था, तो they used to share the powers, form the government, which was a failure. आपके बुक के अंदर ये वो भी बना हुआ है, कार्टून्स भी। एंड लेटर ऑन इस तरीके के फेलियर को भी अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने बनाना शुरू किया अलायंस सिस्टम, यानी कि whether the political party is getting majority in an election or not, ये जो छोटे छोटे political parties हैं which may be regional or independent, ये अपना वोट उसी बड़ी पार्टी को देंगी। हमारे यहाँ पर NDA जो अभी हमारा रूलिंग गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस headed by BJP, and UPA, that is United Progressive Alliance headed by Congress, are two major alliances. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे यहाँ थर्ड लेवल है,
लोकल गवर्नमेंट. दिस लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता था इवन व्हेन इंडिया अटेन फ्रीडम. पंचायती राज हमारे यहाँ बहुत पहले था और गांधी जी का मानना था कि पंचायती राज विल ब्रिंग पीस इन आवर कंट्री. बट एट द सेम टाइम पंचायती राज वॉज नॉट एन ऑफिशियल राज. वो जैसे अपने हर घर के अंदर अपने मामलों को सुलझाने के अपने मतलब की तरीके होते हैं, इट वॉज ऑल्सो वन काइंड. बट लुकिंग एट द बिग स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, Maharashtra, Rajasthan, it was very difficult for the state governments to look after the smallest units of the states. And ultimately, formally 1992 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ. उसके अंदर आपके दो चेंजेस आए, 73rd and 74th. 73rd was for the local government, for the rural government called panchayat system, and 74th was for the urban, that is municipal system. In the and इसमें क्या होता है, सेंटर को भी स्टेट को और स्टेट को भी लोकल गवर्नमेंट को पैसा और पावर शेयर करना पड़ता है. So the power is shared to the last level of the government, which is called as decentralization. इस लेवल में चाहे वो मतलब कि आपका पंचायत हो या म्युनिसिपल, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो हर स्टेट में बना हुआ है. एंड 1/3 of the seats are reserved for the women. In the rural local government, विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज मिलकर बनाता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत. एंड ऑल द मेंबर्स, ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन यानी कि 18 years अबव उसके मेंबर्स बन जाते हैं. एंड इनको जो इलेक्शन होता है, इनका जो हेड होता है वो होता है सरपंच. ऐसे कुछ ग्राम पंचायत मिलके बनते हैं, या तो समिति या फिर मंडल. और इनके जो ग्राम समिति या मंडल के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर चूजन बाय द पंचायत मेंबर्स. जो पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो लोग इनको चूज करते हैं. ऑल द समिटीज एंड मंडल्स टुगेदर इन अ मार्क्ड एरिया विद इन दैट स्टेट को बोला जाता है जिला. और इसका हेड होता है जिला परिषद, जो कोई MP MLA भी इसके मेंबर्स होते हैं. In this manner, the Panchayati Raj has been established. जो local level में they are looking into the problems. In the urban areas, the municipalities are there. The towns, cities are divided into municipal corporations. जो पूरे उसका म्यूनिसिपैलिटी होता है वो आपका होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन. और जो आपके छोटे 4 या 5 या 6 आपके कॉरपोरेशन है, लाइक ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली करके, उनका हेड होता है मेयर. इनके भी ऐसे ही इलेक्शंस होते हैं. 1/3 ऑफ द जो भी आपका डिसेंट्रलाइजेशन वाला, ये दोनों के लिए सेम है. In the rural area, it is called as a village level, gram sabha, block level or zilla. In the urban areas, it is called as municipalities and municipal corporations. Yet, we have some problems which we need to tackle for the जो आपके local हैं. The local government do not get equal powers. Though constitutionally it is mandatory to share, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनके इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते हैं, इनकी ऑडिटिंग यानी कि चेकिंग नहीं हो पाती है, एंड जैसा डिसीजन लेना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. Yet we need to strengthen our decentralization. So this is the chapter federalism.